Let us start with assignment operators. Am I audible to everyone? Yes, sir. Okay. Yes, sir. You can see this PDF. Here the syntax for assignment operator in MATLAB. This equal to sign is used for assignment operator. And you can see that if there are two names, then you can join with underscore. So variable underscore name is equal to a numerical value or a computable expression. Remember, the left hand side of the assignment operator can include only one variable name. And if there are more than one names, then you have to join with underscore, otherwise it will not work. For example, okay, so you can see that here that the right, for example, on command window, this double arrow is signed for command window. So if on command window someone types x equal to 15, so it will be displayed because we have not given here semicolon. Again, if you write x is equal to 3x minus 12, so this is not equivalent to solving this that we will get 2x minus 12 is equal to 0. Basically, this whole term, this means that this whole term 3x minus 12 is assigned to this x. Never solve it like this, that 2x minus 12 equals 0 and you will get x equal to 6. This is not valid here. Is this clear to everyone? Because the value of x already we have assigned here as 15. So 3 into 15, 45, 45 minus 12, that is 33 will be assigned to this x. So whatever written on right hand side, that will be assigned on to assign to the variable on left one. I mean, in mathematics, x is equal to 3x minus 12. So you can write it 3x minus x is equal to 12. And from here you will get 2x is equal to 12. But this is not valid here because we have given instruction that whatever written on right hand side, that will be assigned to left hand side. So be careful here. This is how assignment operator will work in MATLAB. So just go through this statement. The last statement, x equal to 3x minus 12, illustrates the difference between the assignment operator and the equality sign. And if in this statement, the equal sign means equal, the value of x would be 6. Okay, so here answer will be 33, not 6. Again, look here. So just in this statement, we are assigning this whole term. We are assigning this whole term to C. But whatever is mentioned on the right hand side, its numerical value must be declared above this statement, above this, because MATLAB reads all these commands in order. So first, let us assign A equal to 12, B is equal to 4. Now, as using precedence order, this whole value, numerical value will be allotted to C, and the answer of C is equal to 18. So remember, if a semicolon is typed at the end of the command, then when the enter key is pressed, MATLAB does not display the variable with its assigned value. So this already I have discussed in earlier lectures. Second important remark, if a variable already exists, typing the variable's name and pressing the enter key will display the variable and its value in the next two lines. So let us go to next page. Here now there are rules about variable names. These are important. Read it. Actually, command is variable underscore name. Its syntax is equal to some numerical value or expression. Numerical value of or expression. Suppose I want to name this one as, say, BSc MATLAB class. Hello, sir. Tell me. यस सर. सर नेक्स्ट पीछे वाली स्लाइड खोलिएगा एक बार. हम डिस्कनेक्ट हो गए थे अभी. लास्ट वाला जो आपने लास्ट बताया एक बार. जी सर, ये लास्ट में क्या बताया था आपने सर, ये बताएंगे आप, रिपीट करेंगे. देखो यहाँ पे सपोज
if I type semicolon here, then this value will not be displayed. That's what written here. ठीक है ना, प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी मैं ये चीजें बता चुका हूं. And whatever written on right hand side, this whole term value after computing the value here, whatever written on right hand side, because MATLAB reads it in order. I mean the first statement written, it will read it first. So here we require the value of A and B. So before this statement, you must assign value of A and B. And this whole term using precedence operator, this whole value will be allotted to C. This is how assignment operator will work. ठीक है ना, देखो A की वैल्यू 12 है और B की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट कंप्यूट होगा, क्योंकि प्रेसिडेंस आपको बताया था कि ब्रैकेट है, प्लस है, माइनस है और डिवीजन है. तो ब्रैकेट को पहला प्रेफरेंस देते हैं, उसके बाद डिवीजन कंप्यूट होगा और फिर उनका प्लस और माइनस, इनको इक्वल प्रेसिडेंस है. तो ये जब वैल्यू आप इसमें A की वैल्यू 12 और B की वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करोगे तो C की ये राइट हैंड साइड 18 आ जाएगा और वो 18 वैल्यू C को अलॉट हो जाएगा. ठीक है, अभी मैं इसको करके भी दिखाता हूं. पहले एक बार समझ लें आप लोग. अब मैं ये कह रहा था ना, जैसे आप अगर आप सिंटेक्स देखो, जो असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंटेक्स है, यहाँ पे देखो असाइनमेंट ऑपरेटर का जो सिंटेक्स है वो क्या है. इधर लिखा है वेरिएबल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू अ न्यूमेरिकल वैल्यू. जैसे आपने मान लो वेरिएबल नेम को दिया x और न्यूमेरिकल वैल्यू आपने दे दिया 15, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर के रूल होते हैं. ये 15 की वैल्यू हमने x को असाइन कर दी. लेकिन यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो दो नाम है, जैसे सपोज करो मैं कह दूं कि मैटलैब क्लासेस, मान लो मैं नाम देना चाहता हूं मैटलैब क्लासेस, तो आप दो अलग अलग कीवर्ड नहीं दे सकते. या तो आप उनको अंडरस्कोर से ज्वाइन कर दो, या आप ऐसे कंटिन्यूअस लिख दो मैटलैब, क्योंकि वो इसमें रीड नहीं करता. ओके, स्पेस नहीं देना है सर इसमें. हाँ, ये मैटलैब रीड नहीं करता. या तो आप उसे कंटिन्यूअस लिख दो विदाउट गैप, और ज्वाइन टू नेम्स और मोर देन टू नेम्स विद अंडरस्कोर. दैट्स व्हाट रिटन हियर. तो वो चीजें यहाँ लिखी हुई है. अब आप इसे पढ़ें, देखिए वही चीजें लिखी हुई है. ये सब बेसिक रूल्स है. अभी स्टार्टिंग के लिए सब बेसिक चीजें समझनी जरूरी है. सो यू कैन सी दैट वेरिएबल नेम्स कैन बी अप टू 63 इन मैटलैब, 6.5 कैरेक्टर्स along 31 कैरेक्टर्स इन मैटलैब. ये मैटलैब के 6.5 ओल्डर वर्जन है अब तो. यहाँ पे ये देखो, कैन कंटेन्स लेटर्स, डिजिट्स and underscore character, must begin with a letter. MATLAB is case sensitive. I mean it will differentiate. Suppose you A is equal to 15 and you are calling a small, it will show error. If you have assigned A equal to 15, then if you type A and press enter, then it will give you value 15. So it is case sensitive. I mean it differentiate between capital A and small a. These three will be treated as different. I mean these four different variables. Avoid using the names of a built-in function of a variable. अच्छा हाँ, ये देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. जैसे आपने मान लो, अब ऐसा नहीं कि हम cos को हम वैल्यू दे दें, cos को वैल्यू दे दें 5, या sin को वैल्यू दे दें 10, या sin को वैल्यू दे दें हाफ, डिग्री या रेडियन जो भी है. अभी डिग्री रेडियन पे मैं आऊंगा. तो स्टैंडर्ड नाम नहीं यूज करते. जैसे आप ना स्क्वायर या ट्राइंगल, इस तरह के स्टैंडर्ड नाम, या स्क्वायर रूट, साइन फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, स्क्वायर रूट, इस तरह के नाम किससे फाइल सेव नहीं करते. या वेरिएबल नेम को इससे यहाँ पे इस नाम से नहीं सेव करते. उसकी वजह क्या है कि मैटलैब में इस नाम से ऑलरेडी प्रोग्राम बिल्ट इन है, जो बाय डिफॉल्ट जिसे आप यूज करते हो. अगर सेम नाम दोगे तो वो वैल्यू ओवरराइट कर जाएगा जो ऑलरेडी मैटलैब में बिल्ट इन है. तो मतलब स्टैंडर्ड नाम अवॉइड करते हैं, स्टैंडर्ड नाम अवॉइड करते हैं. जैसे मान लो मैंने नाम दे दिया स्क्वायर रूट 2, तो मैटलैब में जितने प्रेसिजन तक स्क्वायर, आपने फाइल का नाम दे दिया SQRT2 स्क्वायर रूट 2, तो वो जो 2 का जो स्क्वायर रूट 2 का ट्रंकेशन के बाद जितनी वैल्यू होगी मैटलैब में ऑलरेडी बिल्ट होगी, वो ओवरराइट कर जाएगा, न कि आपकी वैल्यू. इसलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि स्टैंडर्ड नाम अवॉइड करते हैं. अब देखो दूसरा, नेक्स्ट लाइन, प्री डिफाइंड वेरिएबल्स. मैं रन करके भी दिखा दूंगा, पहले आप एक बार रीड कर लो. कुछ चीजें लिखी होती है जो इंपॉर्टेंट है. हाँ, पाई को हम PI यूज टाइप करते हैं. पाई वर्ड को PI. देखो पाई कैसा वर्ड है, पाई कैसा नंबर है, इरेशनल.
pi is an irrational number, and irrational number are non-terminating and non-recurring. Is it? Non-terminating and non-recurring. लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर को आप रिप्रेजेंट तो कर नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे मान लो जैसे आप ये ले लो 1/3 को जैसे डिवाइड करोगे तो आएगा 0.333 इनफाइनाइट टाइम्स, ये डिजिट इनफाइनाइट टाइम्स होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे तो ये अलग चीज है, चलो इवन 3 इनफाइनाइट टाइम्स भी अगर आ रहा है तो क्योंकि मैटलैब में हम मशीन जो डील करते हैं या हम सिर्फ फाइनाइट क्वांटिटी को ही इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होती है, आपको कहीं ना कहीं से ट्रंकेट करना पड़ेगा। तो वैसे ये जो पाई की वैल्यू ये जो आप लिख देते हो 3.14, ये बेसिकली इसके अप्रॉक्स वैल्यू न की इक्वल है, ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है। मतलब आप डेसिमल के बाद 2 डिजिट के बाद टर्मिनेट कर दो, 4 डिजिट के बाद, डिपेंडिंग ऑन मशीन कैपेसिटी, 8 डिजिट 12 डिजिट। तो ये एक्चुअल में ये तो इररेशनल नंबर है और इधर रेशनल नंबर है, तो इररेशनल नंबर रेशनल के इक्वल तो होगा नहीं। लेकिन एक क्लोज आंसर पाने के लिए, अप्रोक्सीमेट आंसर पाने के लिए हम पाई को किससे रिप्लेस कर देते हैं, 3.14, ठीक है। और तो वो पाई की जो स्टैंडर्ड वैल्यू इसमें अलॉट होगी, और वो जो अच्छा दूसरी बात की ये जीरो मैटलैब में जीरो को मतलब जो डिफरेंस होगा दो चीज के बीच का डिफरेंस, जैसे मान लो कि इसका आंसर जैसे मान लो एग्जैक्ट आंसर कहीं 3 है और मैं उसे अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं और लगभग आ रहा है 3.14, तो इन दोनों का डिफरेंस ये क्या होगा, एरर। 3 और 3.14 का डिफरेंस 0.414 क्या है, एरर। तो मिनिमम एरर दो क्वांटिटीज के बीच में x और उसके एग्जैक्ट वैल्यू के बीच में जो एरर होगा वो मिनिमम मैटलैब में जो आएगा वो कैन नॉट बी फर्दर लेस देन 10 to the power -52। तो ये जो यहाँ पे देखो सॉरी 2 to the power -52, ये प्रिसीजन नंबर कहलाता है। मतलब ये 2 to the power -52 इज इक्वल टू 1/2 to the power 52, और ये ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल होता है, ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल। बहुत डिनोमिनेटर इसका बहुत बड़ा आएगा 2 to the power 52, तो टेंडिंग टू जीरो होगा, लेकिन एग्जैक्ट जीरो नहीं आता। दो का डिफरेंस जो होगा, क्योंकि अब वही है ना कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, तो इसमें हमें ट्रंकेट करना पड़ता है। जैसे पाई का वैल्यू आपको बताया ना नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब डेसिमल, इसमें नंबर ऑफ डिजिट जो होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं। जैसे आप देखोगे ना 3.14, फिर ये 3.1414 हाँ ऐसे, और फिर 1114 कर दो। देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ऐसे नंबर ही बढ़ते चले जा रहे हैं। तो देखो कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा है, 2 1 के बीच में एक 4 था, सॉरी बल्कि आप इस तरह लिख लो, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम क्या होता है, लेकिन ये एग्जैक्टली नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है। जैसे ऐसे मैं कह दूं, आप ऐसे लिख लो x इज इक्वल टू 0.20200200002 ऐसे चले। तो ये कैसा नंबर है, इररेशनल। क्यों? क्योंकि इररेशनल नंबर की क्या पहचान होती है कि वो जैसे इन 2 के बीच में एक 0 है, फिर देखो इन 2 के बीच में 2 0 है, तो कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, नंबर ऑफ डिजिट्स क्या इनफाइनाइट। तो ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, आई मीन आफ्टर सम फाइनाइट डिजिट दे आर नॉट टर्मिनेटिंग, and if they are non-recurring, so those type of numbers are irrational। यहाँ पे ये रेशनल है क्योंकि ये रिकरिंग है। इररेशनल नंबर या तो रिकरिंग होगा या टर्मिनेटिंग होगा, तो ये तो इररेशनल, ये तो रेशनल नंबर है, ये तो रेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पे लेकिन आप मैटलैब में इनफाइनाइट डिजिट नहीं दे सकते, इसके वो उसका भी कॉन्सेप्ट मैं किसी दिन बताऊंगा। ये जो बल्कि रियल एनालिसिस में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे ये जो 1/3 को हमने कैसे 0.333 लिख दिया, इसके पीछे क्या रूल्स है। आपने जैसे कोई नंबर आपको दे रखा है तो आपने ये कैसे निकाल दिया, तो इसका कंस्ट्रक्शन का मैं रूल बताऊंगा, या इसी को बाइनरी में टर्नरी में आपको डेसिमल में लिखना बताऊंगा। जैसे ये तो ठीक है, ये तो आपने डेसिमल में लिख दिया, लेकिन 1/3 को बाइनरी में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, टर्नरी में रिप्रेजेंटेशन 0 1 2 को रिप्रेजेंट करके लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो वो मैं लेक्चर शेयर कर दूंगा अलग से, मैंने रिकॉर्ड उसको कर रखा है। यहाँ पे ये समझने की कोशिश करें कि पाई जो है ये इररेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, whereas the right hand side 3.14 is a rational number। तो इररेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल तो होता नहीं है, तो बेसिकली इसकी अप्रॉक्स वैल्यू, आई मीन आफ्टर सम फाइनाइट डिजिट्स वी आर ट्रंकेटिंग, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट इन एनी कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर।
इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। अच्छा, आई को अंडर रूट -1। अच्छा, INF इज शॉर्ट नोटेशन फॉर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के लिए मैटलैब में शॉर्ट नोटेशन क्या INF? एप्सिलॉन आई मीन टेंडिंग टू 0, यहाँ पे जो होगा ये 2 to the power -52, ये अप्रोक्सीमेटली इतने के बराबर होता है। फर्दर इससे स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स कैन नॉट बी मेड फर्दर लेस देन 2 to the power -52। तो इसका प्रिसीजन नंबर कहलाता है, या इसका जीरो कह सकते हो कि दो चीज का डिफरेंस मैटलैब में आप 2 to the power -52 से फर्दर छोटा नहीं कर सकते। ठीक है, उसी तरह NaN नॉट अ नंबर, है ना। जैसे अगर आपको 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो वहां पे क्या दे देगा, मैटलैब में क्या शो करेगा, NaN नॉट अ नंबर, यूज्ड व्हेन मैटलैब कैन नॉट डिटरमिन अ वैलिड न्यूमेरिक वैल्यू। तो याद रखेंगे, पाई के लिए PI यूज करते हैं, एप्सिलॉन के लिए EPS, INF इन्फिनिटी के लिए, ये सब स्टैंडर्ड कमांड है। यहाँ पे डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। नो सर। अब एक काम करते हैं कि ऐसा करते हैं, कुछ पहले स्टैंडर्ड मैटलैब फंक्शंस देख लेते हैं और उन्हें कैसे लिखे जाए। असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने आपको बता दिया, उसके बाद मैं चलता हूं, डिटेल बताऊंगा आपको कोलॉन का। देखो, जैसे डिस्प्ले फॉर्मेट, अच्छा यहाँ पे, हाँ पहले कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं। एलिमेंट्री मैथ बिल्ट इन फंक्शंस, ये ऑलरेडी इनका प्रोग्राम मैटलैब में ऑलरेडी बिल्ट है और ये सेव है, और हम इन फंक्शंस को कॉल करते हैं और वैल्यू कंप्यूट हो जाता है। ठीक है, सो मैटलैब कैन इंक्लूड फंक्शंस। मैटलैब हैज अ वेरी लार्ज, मैटलैब हैज अ, ये स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस सर, यस सर, यस सर। MATLAB has a very large library of built-in functions. A function has a name and an argument in parentheses. For example, the function that calculates the square root of a number is given by SQRT of x. जैसे मुझे 4 का स्क्वायर रूट कंप्यूट करना है, SQRT ऑफ, मैं यहाँ पे 4 डाल दूंगा। हमेशा ये ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है, पैरेंथेसिस इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई फंक्शन आप यूज करेंगे मैटलैब में, तो आपको जैसे देखो यहाँ पे SQRT 64 टाइप करके इंटर करेंगे आप, ये टाइप करके आप कमांड विंडो पे इंटर करेंगे तो आंसर 8 आ जाएगा, है ना। तो उसने जो मैं बता रहा था कि स्क्वायर रूट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स, अंडर रूट एक्स स्क्वायर जो होता है वो मॉड एक्स होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो होगा वो 2 होगा, ना कि प्लस माइनस टू नहीं होता। ठीक है, चलो अब जैसे स्क्वायर रूट ऑफ ये दे दिया 50 + 14 × 3, तो सबसे पहले क्या काम करेगा, 14 × 3, ये यहाँ पे ये आर्गुमेंट जो एक्सप्रेशन के तौर पे यूज हुआ है, तो 14 × 3, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन को एडिशन पे प्रेफरेंस है, हमने प्रेफरेंस सेट कर रखा है, तो पहले 14 × 3 कंप्यूट करेगा और उसको 50 में ऐड करेगा और तब जाके उसका स्क्वायर रूट निकालेगा। तो ये आंसर आ जाएगा 9.5917। तो ये कुछ स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फंक्शंस है मैटलैब में जो इनबिल्ट है। तो देख लें, जैसे आपको स्क्वायर, जैसे यहाँ पे देखो फंक्शन का नाम दे रखा है, किसके लिए कंप्यूट करना है, स्क्वायर रूट का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, SQRT ऑफ x। कोई भी फंक्शन होगा हमेशा आर्गुमेंट आप ब्रैकेट में दोगे जिसकी वैल्यू कंप्यूट करनी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो दे रखा है SQRT ऑफ 81, तो आंसर क्या आ गया 9। और ये डबल एरो क्या बता रहा है, कहां कंप्यूट कर रहे हैं आप, कमांड विंडो पे। एक्सपोनेंशियल ऑफ x, e⁻x की वैल्यू, जैसे e⁻5 की वैल्यू कंप्यूट करनी है, तो दिया, ये आंसर आ गया। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -24 कितना हो जाएगा, 24। लॉग ऑफ x, नेचुरल लॉगरिथम बेसी, नेचुरल लॉगरिथम सिंपली लॉग ऑफ 1000 लिखोगे तो नेचुरल लॉगरिथम होता है, और log 10 बेस, log 10 इस तरह टाइप करोगे log 10x, तो ये आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करके, सॉरी ये आंसर देगा, log 10 बेस पे है। ठीक है, यहां देखो फैक्टोरियल ऑफ x, फैक्टोरियल के लिए क्या शॉर्ट फॉर्म होता है, फैक्टोरियल ऑफ 5, 120 आ गया, आप करके इंटर करोगे कमांड विंडो पे। तो ये सब स्टैंडर्ड बिल्ट इन फंक्शन है। जैसे देखो, अगर आपको रेडियन में, या चलो रेडियन में अगर वैल्यूज हैं, पाई रेडियन 180 डिग्री, तो साइन ऑफ एक्स, ये स्टैंडर्ड साइन फंक्शन की वैल्यू देगा। जैसे साइन π/6 लिख दिया तो आ गया 0.5, हाफ। कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ π/6 लिख के इंटर कर दिया तो आ गया वैल्यूज की। और अगर आपको कंप्यूट करना है
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए साइन का इनवर्स का शॉर्ट नोटेशन होता है ए साइन, ए कॉस, कॉस का इनवर्स ए टेन, और जिसकी वैल्यू कंप्यूट करना वो आर्गुमेंट आप ब्रैकेट में दे दोगे। हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए भी साइन एच एक्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो ये सब स्टैंडर्ड मैटलैब कमांड, इनको याद नहीं करना है, बस आप एक निगाह देख लो। उसके बाद जब जरूरत होगी ना, तो हम जो हेल्प कमांड होता है वहां पे जाके सर्च कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं भी याद हो, वैसे तो प्रैक्टिस के साथ साथ वो सब याद हो जाता है, आदमी यूज टू हो जाता है, लेकिन नहीं भी अगर है तो कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। पहले आप एक निगाह ये देख लो कि कौन कौन से फंक्शंस हैं ऑलरेडी बिल्ट इन, छोटे मोटे कैलकुलेशन बड़े काम आते हैं। जैसे राउंड टू द नियरेस्ट इंटीजर, तो राउंड ऑफ 17/5, तो नियरेस्ट इंटीजर 3। अब यहाँ पे भी आएगा सीलिंग और फ्लोर फंक्शन, जो आपका कॉन्सेप्ट होता है बॉक्स एक्स का, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। तो जैसे मान लो ये 5.6 है, तो ये दो इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है, 5 और 6 के बीच में, ठीक है। जैसे 17/5 कितना आ जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 3.4। तो 3.4 किन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है, किन दो इंटीजर्स के बीच में है, और नियरेस्ट किसके, 3 के। सो राउंड ऑफ 17/5 कितना हो गया, 3। यही इसका फ्लोर फंक्शन, इसका क्या हो जाता, फ्लोर फंक्शन जो होता 3 हो जाएगा। हाँ, जैसे इस वाले 5.6 का देखो तो सीलिंग और सीलिंग 6 हो जाता, फ्लोर जो है 5 हो जाता। तो वो सारे फंक्शन है। रिमाइंडर एक्स वाई, व्हेन एक्स इज डिवाइडेड बाय वाई, फॉर एग्जांपल जस्ट टाइप REM, रिमाइंडर 13 डिवाइडेड बाय 5, सो आंसर विल बी 3, ठीक है ना। तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, सॉरी साइन सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन आपको याद होगा कैसे डिफाइन करते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन ऑफ x, if your number is greater than 0 we will allot value 1, if it is 0 we will allot value 0, and if your number is less than 1 the value allotted is -1। तो देखो जैसे सिग्नम ऑफ 5 है, तो 5 ग्रेटर देन 0 है, 5 क्या है, ग्रेटर देन 0, सॉरी यहाँ 0 कर ले, 1 नहीं होगा, तो इसको क्या वैल्यू अलॉट होगा, 1, तो आंसर क्या आ गया, 1 है ना। तो ये सब ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शंस हैं जिसको हम यूज करेंगे। असाइनमेंट का मैंने बता दिया कि असाइनमेंट के लिए क्या सिंटेक्स होता है। अब इसके बाद डिस्प्ले फॉर्मेट है। डिस्प्ले फॉर्मेट जैसे ये भी हो सकता है ना कि हमने पाई की वैल्यू जैसे मान लो दी 3.14, तो ऐसा नहीं, मैटलैब में वो 12 डिजिट तक ले सकता है, या कोई भी डेसिमल एक्सप्रेशन। तो ये देखें ये डिफरेंट दे रखा है, जैसे मान लो आपको 12 डिजिट तक आपको आंसर ले जाना है, तो ये है यहाँ पे फॉर्मेट शॉर्ट। फॉर्मेट शॉर्ट fixed point with 4 decimal digits for fixed point with 4 decimal digits for जैसे 290/7, तो डेसिमल के बाद ये 4 डिजिट तक आंसर इसने डिस्प्ले कर दिया। तो ये फॉर्मेट शॉर्ट, इसके लिए ये कमांड होता है शॉर्ट ई। फॉर्मेट लॉन्ग जो होगा वो डेसिमल के बाद 12 डिजिट तक, 14 डेसिमल डिजिट्स, यहाँ ये 14 डेसिमल डिजिट तक आंसर डिस्प्ले कर देगा। तो ये डिफरेंट कमांड है डिपेंडिंग ऑन आप आंसर कितने डिजिट में चाहते हो। तो कुछ बाय डिफॉल्ट शायद ये 8 डिजिट तक लेता है, या कुछ होगा वो देख लेंगे कैलकुलेशन करते वक्त, जो खुद भी याद नहीं कितने डिजिट तक लेता है। तो ये मैंने आपको असाइनमेंट ऑपरेटर बता दिया। अब जैसे मैं एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूं, जैसे देखो, अच्छा हाँ, ये जब आप क्लियर कमांड देते हो ना, क्लियर कमांड, सो इट रिमूव ऑल वेरिएबल्स फ्रॉम द मेमोरी। क्लियर XYZ रिमूव्स ओनली वेरिएबल XYZ फ्रॉम द मेमोरी। अगर आप WHO टाइप करके लिखो, डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ द वेरिएबल्स करेंट इन द मेमोरी, एंड WHO is whose displays a list of the variables currently in the memory and their size together with information about their bytes and class। तो पहला एग्जांपल, पहला सैंपल प्रॉब्लम देखें 1.1। जैसे सपोज करो ये कोई आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दी हुई है, आपको वेरीफाई करना वेदर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और नॉट एट x इक्वल टू 5/4। वेरीफाई द आइडेंटिटी
is correct by calculating each side of the equation substituting value x equal to pi by 5। तो आप अभी कमांड विंडो में करना सीखो। तो सिंपली क्या करना है, कमांड विंडो में आपको पहले लेफ्ट हैंड साइड टाइप करना है। तो आप क्योंकि लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में आप आर्गुमेंट दोगे, x की वैल्यू दोगे, तो पहले ही आप बता दो कि x की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 5, क्योंकि मैटलैब बताया ना सीक्वेंशियल ऑर्डर में रीड करता है, ऊपर से नीचे की तरफ चलेगा। तो क्योंकि अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, cos स्क्वायर x बाई 2, तो आप लिखोगे cos x बाई 2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। और क्योंकि x इसमें आर्गुमेंट यूज करना है, तो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू आपको इससे पहले वाले लाइन में देना जरूरी है। तो हमने पाई बाई 5 को x को असाइन कर दिया और x की वैल्यू यहाँ आ गया 0.9045। राइट हैंड साइड में क्या एक्सप्रेशन है, tan ऑफ x प्लस sin ऑफ x। तो क्योंकि फंक्शन है तो पैरेंथेसिस में देंगे, अभी आपने देखा tan ऑफ x प्लस sin ऑफ x, इसको ब्रैकेट में घेर लो, डिवाइडेड बाई 2 इंटू tan ऑफ x, और आप इंटर करो, क्योंकि इसमें x जो यूज है ना वो ऑलरेडी आपने ऊपर दे रखा है, तो बार बार देने की जरूरत नहीं है। तो आंसर आ गया 0.904। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, इसका मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री मतलब आई मीन दिस आइडेंटिटी इज करेक्ट एट दिस पॉइंट। हालांकि आइडेंटिटी और इक्वेशन में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, कोई बताएगा आइडेंटिटी और इक्वेशन? सर आइडेंटिटी हर वैल्यू के लिए ट्रू होता है, इक्वेशन किसी सर्टेन वैल्यू के लिए। हाँ, तो यहाँ पे मान लो पाई बाई 5 पे वेरीफाई करना है, लेकिन है वैसे ही आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी तो हर एक वैल्यू पे ट्रू होगा, जैसे आपका है ना sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो आप x की कोई भी वैल्यू भरो, ये हमेशा ट्रू होगा। सो दिस वन इज एन आइडेंटिटी, ट्रू फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू R। Whereas if I give you 2x minus 4 is equal to 0, so this is valid only for x equal to 2. So this one is an equation. कुछ particular values के लिए जो true होते हैं वो equation कहलाते हैं। So every identity is an equation, but equation need not be identity. ठीक है, इसको अभी हम लोग कंप्यूट करके देखेंगे। पहले समझ ले 2-3 प्रॉब्लम, फिर मैं भी ले चलता हूं वहां पे। अब एक काम करते हैं, चलो मैटलैब पे चलते हैं और जो जितना अभी हमने पढ़ा उसे करके देखते हैं। अटेंडेंस का स्नैपशॉट भी भेज देंगे आप लोग। अब देखो हमने जो भी किया ना, एक एक करके वेरीफाई करते हैं। आपका एक कमांड विंडो है, एक काम करो, आप जानते हो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। तो मैं लिखता हूं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड लिखने से पहले आपको मालूम है ना कि मैटलैब में सीक्वेंशियल ये रीड करता है। तो पहले आपको जिसकी वैल्यू कंप्यूट करना चाहते हो उसकी पहले देनी पड़ेगी, x इक्वल टू वैल्यू असाइन करनी, न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी है। तो पाई, चलो x इक्वल टू पाई पे चेक कर लेते हैं, या पाई डिवाइडेड बाई 6 ही ले लेते हैं। x इक्वल टू पाई बाई 6 हो गया, तो ये आ गया, ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गया 0.5236। अब मैं ऐसा करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, और याद रखिए ब्रैकेट में हमेशा जो वैल्यू एक्सप्रेशन आर्गुमेंट देते हैं वो ब्रैकेट में होता है। साइन स्क्वायर एक्स शिफ्ट प्लस कॉस वेज स्क्वायर शिफ्ट के साथ एक्स। अब ये तो देखो, अब करने के बाद ये मैंने इंटर कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो अगर कोई गलती होगी तो कोई घबराने की बात नहीं है, आपको वो खुद बताएगा। देखो आप इस पे क्या लिख के आ रहा है, invalid expression when calling a function or indexing a variable, use parenthesis, otherwise check। okay, actually ये पूरे sin x का होल स्क्वायर है ना, आप इसको इस तरह ना लिखो, आप इसको लिखो LHS इसीलिए करके देखा करो सॉल्व कि क्या गलतियां बता रहा है। या तो पूरे ब्रैकेट में मैं लगा के स्क्वायर करता, या आप ऐसे लिखो साइन ऑफ पहले x लिख लो और इसका होल स्क्वायर। तो या तो वेज टू कर दो, या चाहो तो एक और स्क्वायर लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको डाउट है एक और, ये चीजें ऐसी है जो कि आप जब तक सॉल्व नहीं करोगे आपको नहीं समझ में आएगी। चलो साइन स्क्वायर कर दिया ना, साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स होता है प्लस अब ये टाइप हो गया, अब इंटर किया, देखते हैं फिर क्या आता है। देखो 1 आ गया। डिफरेंस आपको दोनों में समझ में आया। ये एक्चुअली ये रीड नहीं करता साइन, यहाँ पे ठीक है वो हम समझ रहे हैं हम क्या किसका स्क्वायर कर रहे हैं, लेकिन ये साइन अभी फंक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, हमने पहले स्क्वायर दे दिया था। वो साइन एक्स एक फंक्शन है, उसका हम स्क्वायर कर रहे हैं जो वैल्यू।
तो इस बार सही हो गया। अब राइट हैंड साइड तो 1 होता ही है, तो वेरीफाई हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री। आपने ऊपर x की वैल्यू π/6 दिया था। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो रही, कमांड विंडो में हम जब काम करते हैं तो बार बार आप एडिटिंग नहीं कर सकते। अगर यही चीज मैं उसमें लिखा होता मैंने, एडिटर विंडो में, हाँ एडिटर में, तो एडिटर इधर राइट में खुला हुआ है, आप इससे पहले के जो आर्गुमेंट उसे बंद कर दें। ठीक है, जो पहले के दे रखे हैं, जो आप इससे पहले यूज किए तो बंद कर दें, और यहां के बाद इसके बाद एंटर करके लिख दें कंट्रोल। कॉपी नहीं हुआ क्या? हाँ, लेकिन अब इसके ऊपर लिख दें आप x इज इक्वल टू, अच्छा ऊपर आप ना यहाँ पे बार बार अब आपको सीएलसी वहां करना पड़ता है, तो आप एडिटर विंडो में पहले ही ऊपर सीएलसी दे दें क्लियर स्क्रीन का, ताकि हर बार वो आपको वो खुद ही वैल्यू ले। अब x की वैल्यू क्या दे, क्योंकि यहाँ पे मुझे x यूज करना है, तो आप x की वैल्यू चलो कोई कुछ और दे दो। x की वैल्यू π/3 कर दो, π/2 कर दीजिए। अब इसको आप रन कराएं, sin 90 प्लस cos 91, देखो आंसर आपका हमेशा कमांड विंडो पे डिस्प्ले होगा। देखिए 1 आ गया है ना। दोबारा रन कराएं, ये π/2 डिस्प्ले होगा ना। देखो आप कमांड विंडो पे जाओ, हमने x इक्वल टू π/2 के बाद आपको सेमी कॉलन नहीं दिया था, तो π/2 की अप्रॉक्स वैल्यू आ गई 1.5708, और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, डाउट तो नहीं आता किसी को? नो सर। हाँ, छोटे छोटे प्रोग्राम्स पहले आप सीखिए, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं मैं, कहीं भी जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं। क्योंकि कुछ ऐसे जैसे होता क्या ना, हम लोग मैथमेटिक्स वाले अक्सर ये गलती करते हैं, 3x इक्वल टू x-12 दे रखा, तुरंत x कैंसिल कर दिया और बता दिया x इक्वल टू 6। यहाँ पे हमने एक्चुअल में जब ये प्रोग्राम जब डिजाइन किया, तो हमने ये एज्यूम किया है कि जो राइट हैंड साइड में चीजें होंगी वो लेफ्ट को असाइन करेंगे, तो वो आपको वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। बात समझ आ रही मेरी? ठीक है, तो ये सब चीज, हाँ तो ये चीजें बस, ये कुछ फंडामेंटल्स हैं जो कि आपको उससे अलग कर दे, कि इनको ख्याल रखेंगे तो प्रोग्रामिंग में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, और मैंने क्या बताया था, ट्रिग्नोमेट्रिक ये वर्जन मैंने दोनों करा दिया। और जैसे मान लो मैं लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे गैप करके मैं कुछ इसी में लिख देता, उसका नाम कुछ देता मैट। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये। अच्छा, ये लग रहा है कोई स्टैंडर्ड फंक्शन का नाम दे दिया ना, इसलिए वो दूसरे कलर में हो गया। चलो मैं बीएससी लिख देता हूँ, बीएससी, ये भी कुछ सर वो अंडर स्कोर करके लगाना पड़ेगा शायद उसमें। हाँ, ये मैं वही दिखाना चाह रहा हूँ कि अब इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। जैसे रन किया तो देखो क्या आ रहा है, आप ये जब देखें क्या बता रहा है, एरर इन लाइन M1 तो प्रोग्राम का नाम है, उस प्रोग्राम में लाइन 8 पे एरर बता रहा है। क्या लिखा है, अनडिफाइंड फंक्शन LHS फॉर इनपुट आर्गुमेंट ऑफ टाइप कैर, अनडिफाइंड फंक्शन है ना, जो आपको वहां पे मैंने बताया बुक में कि जब दो नाम्स होते हैं, अगर दो आप टर्म दे रहे हो, दो कीवर्ड दे रहे हो, तो आप उसको किससे ज्वाइन करेंगे, अंडर स्कोर से। ठीक है ना, अब देखो वेरिएबल में स्पेस नहीं होता ना इसलिए। हाँ, वेरिएबल में स्पेस नहीं होता, तो ये सब फंडामेंटल बहुत जरूरी, वरना प्रोग्राम करते हो आप परेशान हो जाएंगे। हो सकता है किसी और वजह से रन न कर रहा और आपको समझ में आ रहा है कि मैंने कोई मैथमेटिकल मिस्टेक की है। ठीक है, तो ये इन चीज इसीलिए मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। देखो अब आंसर सही हो गया, 1 आ गया, और आगे आगे लेफ्ट हैंड साइड अंडर स्कोर क्लासेस की वैल्यू 1 हो गई। तो जो बुक में एक एक पॉइंट लिख रखी है ना, अच्छे प्रोग्रामर हमेशा उन लाइंस को रीड करते हैं। एक बार आप रीड कर लोगे, उसको जैसे जैसे प्रैक्टिकल करते जाओगे, आपको एक एक चीज यूज टू हो जाओगे आप इस पे। ठीक है ना, और कमांड आपको खुद कॉन्फिडेंस आने लगेगा। लेकिन आप बेसिक क्लासेस स्किप कर दोगे तो फिर आपको मैटलैब टफ लगेगी। बहुत आसान सब्जेक्ट है और बहुत यूजफुल है, हर एक जगह यूज होता है। लेकिन अगर आपने ये बेसिक क्लासेस मिस कर दी, जो फंडामेंटल्स बता रहा हूं, तो आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जब अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हम करेंगे, वहां पे अगर आप कहीं अंडर स्कोर छोड़ देते हो और आपको ये नहीं मालूम कि 3x इक्वल टू x-12 का मतलब होता है कि x की ये व्हाट एवर रिटन ऑन राइट हैंड साइड दैट विल बी असाइंड टू लेफ्ट हैंड साइड, इस तरह की प्रॉब्लम आपको आएगी। ठीक है, तो ये मैंने वो दोनों चीज आपको रन करा के भी दिखा दिया, और आपको डिस्प्ले, अच्छा डिस्प्ले फॉर्मेट, और अच्छा पहले चलते सेमी कॉलन देखें, फिर किसी एक क्लास में मैं डिस्प्ले फॉर्मेट बताऊंगा।
वो कंबाइन कर दूंगा आपको, फॉर्मेट शॉर्ट, फॉर्मेट लॉन्ग, और भी अभी आगे आएगा वो। एक काम करते हैं कि बुक में अच्छा, ये पीडीएफ बुक में पता नहीं मैंने ग्रुप में शेयर किया था या नहीं, हो सकता है मैं भूल गया हूँ। हो गया था सर। नहीं किया सर। हाँ मैं कर दूंगा, आप लोग बुक से पढ़ें और अपनी किताब ले लें, बेहतर रहेगा। हाँ मैं ये अब इसमें सर बुक मिल जाएगी ऑनलाइन सर बुक? हाँ ये फ्रीली पीडीएफ भी अवेलेबल है, लेकिन अगर चाहे तो आप मंगा भी सकते हैं, इसकी लेटेस्ट एडिशन वाइले पब्लिकेशन की है। अब ये सब आपको बता दिया मैंने, कर लेंगे, बहुत छोटे छोटे एक्सरसाइज दे रखे हैं, सिंपली इनको टाइप करके। यस सर। हाँ ये खुद से कर लेंगे, करके मुझे पोस्ट कर देंगे ग्रुप में, मैं चेक करके। लेकिन वो ऐसे नहीं, ओके सर। जो आप स्क्रीनशॉट बना लीजिए, उसमें मैटलैब सही में है। रन करा के तब उसकी स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे बच्चे। नहीं ठीक है, मुझे पर्सनल कर देना। कब सब देखें तो आपने स्टार्टिंग तो सही की है कि नहीं, अब क्या करें, अब वो तो करना ही है ना, और कोई अल्टरनेट नहीं है ना। क्लासरूम, गूगल क्लासरूम। हाँ गूगल क्लासरूम पे कर सकते हैं आप, पूरा एक्सरसाइज करके कर दे, मैं उसमें अपना नाम और वो लिख के कर देंगे, तो उस बहाने आपको दो फायदा होगा, एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और फिर मैं भाई आप जितना ज्यादा सिंसियर होंगे मैं मार्किंग उसी बेस पे नंबर दूंगा। जी सर। बिल्कुल, ये ओके सर। हार्डली 5 मिनट नहीं लगेगा आप लोगों को ये सब करने में। आपने क्वेश्चन नंबर Yes, sir, 6 yes, डाला, ए लिखा, टाइप करके किया, ये सिर्फ इसलिए Yes, कर रहा हूँ sir. कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। यस सर। और जब गलतियां आएगी ना तो वो भी देखो कि क्यों गलत है, गलतियां हो रही है, वो तुरंत मैटलैब आपको बताएगा, अगली लाइन पे लिख के आएगा किस लाइन में क्या गलतियां हो रही है, तो आप उस पर क्लिक करके जाके वहां करेक्शन कर सकते हो। सबसे अच्छा है इसका एडवांस, इसलिए मैं कहता हूँ ना मैटलैब यूजर फ्रेंडली है, तो उसको ऐसे नहीं कहते। अच्छा, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले आप लोगों को जो समझना है वो है सेमीकोलन अरेज में। हाँ अरेज, क्रिएटिंग वन डायमेंशनल अरे या वेक्टर कह दो, वन डायमेंशनल वेक्टर। हम जो सॉल्व करेंगे सर उसकी पीडीएफ सेव कर सकते हाँ हैं? उसमें पीडीएफ भी सेव कर सकते हैं, उसमें पीडीएफ का ऑप्शन होता है डायरेक्ट सेव करने का, जब सेव करेंगे ना तो वहां पे आता है। बल्कि डिस्प्ले फॉर्मेट में एक दिन क्लास में बता दूं ना, तो जो रिजल्ट आप मैटलैब पर रन करा रहे हो वो ऑलरेडी पीडीएफ का फॉर्मेट में आ जाएगा, वो कमांड देने पर। ओके सर। देखो आपको जो मैं, हाँ चलो इसको पढ़, क्या टाइम हो गया इसमें। चलिए आप यहां से वर्ड बाय वर्ड देखें, स्किप करना सही नहीं है। क्रिएटिंग अरेज, the array is a fundamental form that MATLAB uses to store and manipulate data. An array is a list of numbers arranged in rows and or columns. The simplest array, one dimensional, is a row or a column of numbers. A more complex array, two dimensional, is a collection of numbers arranged in rows and columns. One use of array is to store information and data as in a table. In science and engineering, one-dimensional arrays frequently represent vectors and two-dimensional arrays often represent matrices. तो बेसिकली अगर हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो वन डायमेंशनल अरे क्या आपका वेक्टर्स और टू डायमेंशनल अरेज क्या आपका मैट्रिसेस। चैप्टर 2 shows how to create and address arrays, while chapter 3 shows how to use arrays in mathematical operations. In addition to arrays that are made up of numbers, arrays in MATLAB can also be made of a list of characters, which are called strings. I will deal that one by one. Suppose we need to write the position of a point A in. Suppose position of a point A in three-dimensional space is given by the vector 2i plus 4j plus 5k. 2i plus 4j plus 2 4 5, ये क्या बताता है कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग आप 2 यूनिट चलोगे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग आप देखो, इसके पैरेलल ये यहाँ क्या आया 2 यूनिट। मान लो यहाँ पे आपको फैन है, आप अपने रूम में देखो यहाँ पे फैन है, फैन का मैं मैथमेटिकल पोजीशन मैंने बताया 2 4 5, तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी एक कॉर्नर से एक्स एक्सिस के लॉन्ग 2 यूनिट, फिर वाई के पैरेलल आप 4 यूनिट चलोगे और जेड के पैरेलल कितना चलोगे 6 यूनिट, अब सॉरी 5 यूनिट,
तो आप उस फैन पे पहुंच जाओगे। तो ऐसे ही ये क्या वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ही तो 2 4 5। तो अब इसी चीज को मान लो मुझे स्टोर करना है, तो कैसे करेंगे? तो ये बता रहा है कि सिंपली आपको क्या काम करना है, क्रिएटिंग अ वेक्टर फ्रॉम अ नोन लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो आपको ये जो ब्रैकेट है ये अरे का साइन है, क्रिएटिंग अ वेक्टर फ्रॉम अ नोन लिस्ट ऑफ नंबर्स। जैसे सपोज किया कि आपको 1984 में किसी सिटी की पॉपुलेशन ये है, या किसी एरिया की पॉपुलेशन ये 1986 में इतनी हो गई, 1988 में ये है, तो आप इसे कैसे स्टोर करोगे? तो आप देखो ये दो अगर यहाँ पे अब उसमें भी यूनिफॉर्म स्पेसिंग है या रैंडम स्पेसिंग है या लीनियर आई मीन एक्सपोनेंशियल स्पेसिंग है, तो उनके लिए अलग अलग कमांड है। जैसे अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो तो 1984 के बाद 86 ये 2-2 साल का डिफरेंस है, 2 साल का डिफरेंस है। स्टार्टिंग वैल्यू 1984 और फाइनल वैल्यू जो है आपकी वो 1986 है। तो इसके लिए मैटलैब में बड़ा अच्छा बिल्ट इन कमांड है कोलोन का यूज। ठीक है, तो देखो जैसे ये अरे आपने लिख के, एक तो तरीका होता है कि उसमें छोटा नंबर्स है, जैसे 7-8 डिजिट है तो आप मैनुअली टाइप कर लो, 1984 लिख लिया, 1986 ये कर लिया। लेकिन अगर बड़े नंबर है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्मली स्पेस्ड है, तो आप उसको उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड कमांड्स हैं। देखो कैसे, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये है, पढ़े इसका हेडिंग क्या है, क्रिएटिंग अ वेक्टर विथ कांस्टेंट स्पेसिंग बाय स्पेसिफाइंग द फर्स्ट टर्म, द स्पेसिंग एंड द लास्ट टर्म। जैसे मान लो कि आपको ये वेक्टर टाइप करना है, वन डायमेंशनल वेक्टर है, वही वन डायमेंशनल है, 2 4 6 8 10, मुझे इस वेक्टर क्रिएट करना है। तो इसका इनिशियल नंबर है 2, फाइनल है 10, और इनके बीच में स्पेसिंग कितनी है, 2-2 यूनिट की। आई मीन 2 में 2 जोड़ो 4, 4 में 2 6। तो आप इसके लिए बड़ा स्टैंडर्ड कमांड, अ वेक्टर इन विच द फर्स्ट एलिमेंट इज m, spacing is q and the last term is n, is created by typing variable underscore name is equal to within bracket, this is used for one dimensional array, m is to q is to n। जैसे देखो यहाँ पे देखो हमने लिखा x इक्वल टू 1 is to 2 is to 13 मीन्स, और लिख के इंटर कर दो। तो x पहली वैल्यू 1 है, उसमें ये 2-2 की स्पेसिंग होगी, 1 में 2 ऐड होगा 3, 3 में 5, 7 अप टू 13। बात समझ में आया आपको? सर ये हाँ, 13 वाला लास्ट वाला बताइएगा, 13 कैसे? ये आप जैसे मान लो आप चाहते हो 1 से 13 पर 2-2 की स्पेसिंग पे नंबर क्रिएट करना है, ये आपको असाइन करना है कि आप क्या स्पेसिंग चाहते हो। आपको सर जैसे मैटलैब को, जी सर, अगर जैसे हमारे 4 के हो तो 4 टर्म से 1 4 13 ऐसे कर दें। हाँ 1 4, और सर एक्सेट्रा नहीं कुछ भी वैल्यू ये समझे मेरी बात, ये कमांड क्या कहता है कि आप इनिशियल वैल्यू दो, इनिशियल दो, फाइनल दो, और खुद बताओ उसमें स्पेसिंग कितनी की रखनी है, वो खुद ही कंप्यूट करके दे देगा। ओके सर। आपको इनिशियल अलॉट करना है, फाइनल अलॉट करना है, और बीच में स्पेसिंग आपको बतानी है। जैसे मान लो आप 2, जैसे मान लो आप 1 रखना चाहते हो, 1:1 is to 10, तो एक पहला 1 होगा, फिर उस पर 1 ऐड करेगा 2, जब तक आई मीन अप टू 10, फिर 1 ऐड करेगा 3। हालांकि बाय डिफॉल्ट भी 1 is to 10 लिख दोगे आप, तो बाय डिफॉल्ट ही 1 की स्पेसिंग लेता है, वो आगे क्लियर किया। देखो जैसे ये देखो z is equal to -3 is to 7, तो अगर बीच में आप स्पेसिंग नहीं बताओगे तो ये बाय डिफॉल्ट 1 ले लेगा। इफ स्पेसिंग इज ओमिटेड इट इज द डिफॉल्ट इज 1। तो पहला नंबर -3 होगा, -3 में 1 ऐड करोगे -2, फिर 1 ऐड करोगे -1, फिर 0, फिर 1 अप टू 7। आगे समझ में? फर्स्ट एलिमेंट is -3, last element is 7, spacing is omitted, so by default it will take value 1। इसका मतलब क्या हुआ, x is equal to मैंने दिया 21 is to -3 is to 6, इसका मतलब 21 हमारा पहला वैल्यू है, 21 आएगा, उसमें -3 ऐड करोगे, कितना हो जाएगा 18, और इस तरह ये नंबर 3-3 घटते चले जाएंगे जब तक 6 ना आ जाए। देखो नेक्स्ट पेज पे किया होगा, यहाँ देखो 21 18, फिर 3 कम होता जा रहा, 15 12 9 और 6। मतलब एक तरह से आपका ये एपी है। लेकिन अब दूसरा ऐसा भी तो हो सकता है
कि मैं इनिशियल और फाइनल वैल्यूज दे दो और मुझे उसके बीच में 100 पॉइंट क्रिएट करना लीनियरली या 1000 पॉइंट क्रिएट करना, तो क्या करोगे? तो उसके लिए ये कमांड है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। इनका यूज बहुत ज्यादा है। देखो अभी मैं जैसे आपसे कहा जाए ना कि 1 से 1000 नंबर्स का आप क्यूब रूट करो या क्यूब करो, तो अब मैनुअली 1 से 1000 आपको टाइप करना, मतलब हाथ से भी लिखना होगा, तो एक कॉम्प्लिकेटेड वर्क है। ठीक है, आप लॉजिकली आप चीज समझ रहे हो, लेकिन 1 से 1000 दिया दिया, 1 से 10,000 नंबर्स का मान लो स्क्वायर निकाल लो, क्यूब निकाल लो, यहाँ पे क्या जस्ट 2 लाइन के कमांड से आंसर आ जाएगा। तो आपको मैनुअल वर्क बचेगा। मशीन्स का काम क्या होता है? कंप्यूटर। सर ये अपोजिट कैसे लिखना था सर, ये वाला फिर से बता दीजिए। अपोजिट क्या? सर ये जो नंबर अपोजिट में लिखा था 21 से 6 के बीच में, सर ये जो स्पेसिंग करके, सर इसको कैसे लिखेंगे, वो वाला फंक्शन कैसे इसको x, देखो x से इस, तो इसका वेरिएबल का नाम दे दिया लिखेंगे? इक्वल टू, ये ब्रैकेट किसके लिए यूज करते हैं? अरे के लिए। हम्म, अब पहला नंबर आपका 21 है, आपको स्पेसिंग कितने की रखनी? -3 की। अच्छा -3 की। और फाइनल आपको कहां तक रोकना है? 6 तक। अच्छा स्पेसिंग से माइनस में करेंगे, अच्छा हाँ, उल्टा जाना स्पेसिंग होगा। -3, मतलब ये वही एपी है। तो 21 पहला नंबर हो गया, उसमें कॉमन डिफरेंस यस सर, ये तो -3 ऐड कर समझ दिया, गए। 18। सर वही सर, मैं पॉजिटिव ले रहा था सर, इसलिए एरर आ रहा था मेरा। अच्छा अच्छा, हाँ बताइए, सर और किसी को कोई डाउट है? सर मुझे डाउट है सर, जैसे लास्ट नंबर नहीं पता हो हमको और हमें 5 लेनी हो तो कैसे लेंगे सर? जैसे 21 से 5 तक। देखो एक बड़े, चलो बड़ा आपने अच्छा सवाल पूछा है। मैटलैब में ना ये रियल वैल्यू से डील करता है, तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन इसे प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, ये इसीलिए मैंने कहा ना कि मैटलैब इनफाइनाइट या अननोन चीजों से डील नहीं करता। ये क्या होता है कि आपको चीजें सिमुलेट करने के लिए, जैसे कोई रिजल्ट उसे वेरीफाई करने के लिए हम यूज करते हैं। ओके सर। तो अब सर ये भी मतलब हो इसके लिए सकता पहले फॉर्मूला बनाना पड़ेगा नहीं, तब? कोई फार्मूला इसमें बिल्ट इन है, बस आपको एक कमांड यूज करना है। पहले आप एक एक करके समझो। देखो पहला वाला कमांड क्या कहता है कि अगर आप सिंपली सेमी कॉलन दोगे, और जैसे मैं आपसे लिख दिया जब 1:3:21, तो ये पहला नंबर 1 लेगा, उसमें 3 ऐड करेगा, 4 आ जाएगा, 4 में 3 ऐड करेगा 7, इस तरह चलता रहेगा 21 के क्लोज तक, मतलब जब जो भी नंबर आ जाए ये होगा। 3-3 के स्पेसिंग पर 21 या 21 से पहले तक जो आ जाए वो होगा। लेकिन अब ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे मान लो मैं ये कहूं कि मुझे 0 और 1 के बीच में, या चलो 0 और 10 के बीच में मुझे 100 पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे क्रिएट करने हैं। बात समझ आ रही मेरी बात? जैसे मैं ये कहूं कि मुझे 1 से 100 के बीच में मुझे 20 इक्वली स्पेस्ड पॉइंट क्रिएट करने हैं, 20 इक्वली स्पेस्ड पॉइंट, तो फिर क्या कमांड यूज करोगे? अब तक क्या था कि हम कॉमन डिफरेंस देते थे, इनिशियल फाइनल बताते थे और कॉमन डिफरेंस देते थे, और वो नंबर अरेंज कर देता था, लेकिन हमें ये नहीं मालूम होता कि कितने होंगे। वो देखना तो आपको साइज कमांड देना पड़ेगा। सेकंड क्या कहता है? क्रिएटिंग अ वेक्टर विद कांस्टेंट स्पेसिंग बाय स्पेसिफाइंग द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो आपने ये कमांड दिया, वेरिएबल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू लीन स्पेस। लीन स्पेस मतलब ये लीनियरली स्पेसिंग कर देगा, लीनियरली कांस्टेंट स्पेसिंग। तो आपको ब्रैकेट में इसका कमांड क्या है कि विद इन ब्रैकेट गिव इनिशियल वैल्यू xi फॉर इनिशियल एक्सेप्ट फॉर फाइनल एंड n इज द नंबर ऑफ इक्वली स्पेस्ड पॉइंट यू वांट टू क्रिएट। जैसे देखो, जैसे हमने एक नाम दे दिया यहाँ पे, मैं भी रन करा के भी दिखा देता हूं, पहले आप इस पे समझ लो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको क्लियर होगा। जैसे मान लो मैंने वेरिएबल अंडरस्कोर इधर कुछ नाम दे दिया, ऊपर से अलग, अदरवाइज ओवरराइट कर, va इक्वल टू लीन स्पेस कमांड विदाउट गैप 086, मतलब 0 और 8 के बीच में मुझे इक्वली स्पेस 6 पॉइंट्स क्रिएट करने हैं। ये कर टाइप करके आप इंटरप्रेस कर दो। तो पहला 0, फिर 1.600, 3.200 इक्वली, देखो 0 और 8 के बीच में इंक्लूडिंग द 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। आपने 6 कितना हुआ? 0, 1, 2, 3, 4, ये क्या कर रहा है? जैसे आप वो पढ़ा होगा ना, लेंथ होती है ए और बी के बीच में, आप क्रिएट करना चाहते हो इक्वली स्पेस्ड n पॉइंट्स, और मान लो स्टेप साइज h है, a है, फिर a प्लस h है, फिर a प्लस 2h है, अप टू जब तक b ना आ जाए। तो nth स्टेप में क्या आ जाएगा? a प्लस n माइनस 1h इज इक्वल टू b। यहां से n h स्टेप साइज कितना आ जाएगा? b माइनस a अपॉन n माइनस 1। h जो स्टेप साइज है कितना आ जाएगा? b माइनस a अपॉन n माइनस 1। nth स्टेप पे n माइनस 1 हो जाएगा ना, हाँ n माइनस 1।
तो वो आप स्टेप साइज दोगे, इनिशियल मालूम है, फाइनल पॉइंट है। तो अब यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ हम ये एच दे रहे हैं, स्टेप साइज बता रहे हैं, स्टेप साइज कितना होगा, सॉरी यहाँ पे हम वो स्टेप साइज क्रिएट कर देगा इस फार्मूले से। बी मालूम है, इनिशियल वैल्यू ए मालूम है, बी मालूम है, और नंबर ऑफ पॉइंट्स आप दे दोगे, 1 2 3 और 4 में से कोई भी 3 मालूम है और एक इक्वेशन है तो एटलीस्ट 3 मालूम होना चाहिए। तो आपने ए दे दिया, बी दे दिया, एन दे दिया, तो एच आ जाएगा, स्टेप साइज आ जाएगा। तो उससे कंप्यूट कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ 30 10 और 11 है, तो इसका मतलब 30 आपका इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल नंबर, 10 आपका लास्ट है, और इनके बीच में मुझे 11 पॉइंट्स क्रिएट करने हैं। वही देखो, फर्स्ट एलिमेंट इज 49.5, सॉरी 11 एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट इज 30, लास्ट एलिमेंट इज 10। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि sin x का ग्राफ बनाओ 0 से 2 पाई पे, 0 से 2 पाई पे sin x का आप ग्राफ बनाओ। तो अब आपको मैंने बताया था कि मैटलैब या कोई भी सॉफ्टवेयर टूल जो होता है वो कभी भी कंटिन्यूअस वैल्यू रीड नहीं करता। हो सकता है आपको उस वक्त नहीं समझ में आया, आपने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया होगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे इनका, देखो अभी मैं इस पे इंप्लीमेंट करके आपको दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा। ये स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस सर। अब एक काम करो, मैं एक टाइप करता हूं। जैसे मान लो मैंने लिखा 1:5, सॉरी 1:5 चलो 24 कर दिया। बताएं इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब पहला नंबर 1 होगा, पहले नंबर 1 होगा, लास्ट नंबर 24। हाँ 5 के स्पेसिंग पे, स्पेसिंग हो जाएगी। हाँ 5 के स्पेसिंग पे 24 या 24 से पहले जहां पे भी खत्म हो जाए, है ना। देखो अब इंटर करके मैं दिखाता हूँ। देखो क्या हुआ, पहला नंबर 1 हुआ, दूसरा 5 उसमें ऐड किया, 6 11 16 21, क्योंकि 21 के बाद 5 आप ऐड करोगे तो 24 से एक्सीड कर जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। यस सर। देखिए यहाँ पे तीनों लाइन को पढ़े आप। पहला लाइन हमने क्या किया, हमने सिंपली कोलोन का यूज किया। तो 1:5:24 का मतलब होता है कि पहला एलिमेंट 1 होगा, उसमें 5 ऐड करेंगे जब तक 24 या 24 के अंदर आए, मैंने उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो 1 में 6, 6 में 5 11, 11 में 5 16, 16 में 5 21। लेकिन लिनस्पेस कमांड कब यूज करते हैं? जैसे मैं चाह रहा हूँ कि 0 से 1 के बीच में 10 पॉइंट्स इक्वली स्पेस क्रिएट करना। तो देखो पहला 0 है, लास्ट वाला 1 है, और इंक्लूडिंग 0 और 1 टोटल कितने हैं इसमें? 10 पॉइंट्स। हेलो सर। हाँ बताएं। जब हम ये लिखेंगे इसमें तो लिन स्पेस लिखना होगा ना हमें? हाँ लिन तभी स्पेस तो लिखना होगा, लिन स्पेस कमांड लिखना होगा। यस सर, क्योंकि अगर ये टाइप करना तो और कुछ वैल्यू आ रही है। हाँ हाँ, और ये y इक्वल टू जैसे लिन स्पेस 1 से 20 के बीच में 2 पॉइंट, तो 1 और 20 ही हो गया। लेकिन उसी में 120 के बीच में 4 पॉइंट क्रिएट करना चाहता हूँ, इंक्लूडिंग 1 एंड 20। तो देखो 1 2 3 4। आगे समझ में? अब एक काम करो, अब देखो लिन स्पेस का फायदा क्या होगा, एक मैं प्रोग्राम सिंपल सा करके आपको तब बताता हूँ। चलो इसको पहले इस कमेंट कर दो इस लाइन को, मतलब ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। मैं एक जस्ट छोटा सा ग्राफ आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मैं चाहूं कि ये, चलो अभी लिन स्पेस भी रहने देते हैं, पहले मैं सिंपली पॉइंट क्रिएट कर रहा हूं। मैं x इज इक्वल टू, मैंने लिया 0 से 2 पाई में मैं साइनस का ग्राफ बनाना चाहता हूँ। 0:2 स्पेसिंग कर देते हैं, 0:0 2 पाई है ना, ठीक है। 0:2 ठीक है, पाई कर देता हूँ, pi पाई इज टू 2 स्टार पाई। तो ये पाई बाई बल्कि 6 कर देता हूँ, पाई बाई 6। अब ये करने के बाद देखो पहले क्या आएगा, आप इसको अगर रन करा के देख लें, ये आएगा 0 से 2 पाई के बीच में हमने पाई बाई 6 की स्पेसिंग दे दी। देखो 0 और 2 पाई ऑलमोस्ट 6.2382 क्या आएगा, 3.14 के आसपास ले लो। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया। मैं इन पे प्लॉट करना चाहता हूँ साइन एक्स का वैल्यू हर एक पॉइंट पे। तो y इज इक्वल प्लॉट, y इज इक्वल टू, पहले ये जो x क्रिएट हुए
y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, पहले फंक्शन दे दिया, x दे दिया, इन हर एक वैल्यू पे y कंप्यूट होगा, और फिर प्लॉट कमांड दे दिया। प्लॉट किसके किसके बीच में ग्राफ बनाना है? x और y के बीच में, x और y के बीच में, x, y। तो ये क्या काम करेगा? अगर पहले इसको रन कराता हूं मैं, देखो ये जो 0 से 2 पाई है ना, 0 से 2 पाई ऑलमोस्ट 7 के 6 से थोड़ा पहले आएगा। तो ये मैंने डिस्क्रिटाइज किया, ये देखिए डिस्क्रिटाइज किया 0 से 2 पाई को, उन पॉइंट्स पे ये, और थोड़ा रफ ग्राफ आ रहा है क्योंकि मैंने कम पॉइंट्स में डिस्क्रिटाइज किया। अब मैं थोड़ा डिस्क्रिटाइजेशन बढ़ा दे रहा हूं। जैसे मैं एक काम करता हूँ, 0 से पाई बाय 6 था ना, चलो पाई बाय इसको 16 कर दें। तो अब देखो ग्राफ और अच्छा आएगा, क्योंकि अब जितना ज्यादा पॉइंट्स में डिस्क्रिटाइज हो ग्राफ उतना स्मूथर होगा। देखो ग्राफ क्या होगा, और स्मूथर होगा। अब मैं काम करता हूं, इसको करने के बजाय मैं खुद ही पॉइंट्स क्रिएट करता हूं। इस लाइन को बंद कर देता हूं और मैं ये करता हूं कि मैं कह रहा हूं कि x इक्वल टू 0 और 2 पाई, 0 इज टू, अच्छा लिन स्पेस कमांड दे देता हूं, लिन स्पेस, बल्कि ऊपर ये दिख रखा है, हटा दें, यहाँ पे ऊपर दे रखा, उसी में एडिटिंग कर देता हूँ। यहाँ से परसेंट साइन हटा दें तो प्रोग्राम का पार्ट हो जाएगा। 0 से मैं 2 पाई के बीच में 10 पॉइंट क्रिएट करना चाहता हूँ। 2 स्टार पाई, स्टार मल्टीप्लीकेशन है ना, 2 स्टार पाई, उसके बीच में मैं 10 पॉइंट क्रिएट करना चाहता हूँ। देखो प्रोग्राम कैसे रन कर रहा है, ये 10 पॉइंट क्रिएट किए। तो ये इन 10 पॉइंट को आप जब ज्वाइन करते हो तो ये ग्राफ आया साइन एक्स का। अब जरा आप कमांड विंडो पे जाके देखो क्या आ रहा है। कमांड विंडो पे क्या हुआ, कमांड विंडो पे क्या हुआ कि हमने 0 से 2 पाई के बीच में 10 पॉइंट क्रिएट किए। एक मिनट, मुझे लग रहा है ये हैंग कर रहा है। हाँ देखो, x की वैल्यूज आई 0 और 2 पाई लगभग 6 पॉइंट, उनके बीच में इंक्लूडिंग 0 एंड 2 पाई ये 10 पॉइंट क्रिएट हुए। और हर एक 0 पे y की वैल्यू, साइन ऑफ 0 0 हो गया, साइन ऑफ 0.6981 इतना हो गया। y के भी 10 पॉइंट क्रिएट हुए, और फिर ये 0 0 हमने ज्वाइन किया, फिर 0.68981 और ये 0.6 ये ज्वाइन किया। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको ये ग्राफ आएगा, ये ग्राफ आएगा जो आपने यहाँ रन करा के देखा। ये मैटलैब हैंग कर रहा है, चलो हो जाता है कभी कभी, हेवी सॉफ्टवेयर है ना, तो इस पे वैसे भी मैंने बहुत से इंस्टॉल कर रखे हैं। तो ठीक है, यहीं पे, हाँ देखो ये आ गया। अब ये ग्राफ स्मूथ नहीं है क्योंकि आपने कम पॉइंट्स में, 0 से 7 को आपने कम पॉइंट्स में डिस्क्रिटाइज किया है। अब मैं काम करता हूं, मैं और ज्यादा पॉइंट्स में, अब 10 की जगह मैं 100 पॉइंट्स में डिवाइड कर देता हूं, 100 पॉइंट्स में। तो सिंपली यहाँ रन करा के और यहाँ पे इंटर रन कर देना। अब देखो आपका ग्राफ बिल्कुल स्मूथ आ गया। तो समझ में आ गया, जितना ज्यादा आप डिस्क्रिटाइजेशन करोगे, क्योंकि मैटलैब कंटिन्यूअस इंटरवल रीड नहीं करता। ये नहीं कि 0 से 2 पाई या हम रियल नंबर, हम कोई कंटिन्यूअस लाइन इंटर करा दें, मैटलैब नहीं। मैटलैब हमेशा फाइनाइट नंबर ऑफ क्वांटिटीज से डील करता है। वो ठीक है, थ्योरेटिकली ये सब चीज सही है, लेकिन जब आपको इंप्लीमेंट करना होगा तो कोई भी आप कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर ले लें, इवन सीरीज कंप्यूट करना हो, सीक्वेंस कंप्यूट करना हो, आपको कहीं ना कहीं टर्मिनेट करना पड़ता है। इवन इररेशनल नंबर को हम अप्रोक्सीमेट करते हैं रेशनल नंबर से, ठीक है। तो वो जो पाई की वैल्यू 3.14 करते हैं वो बेसिकली अप्रोक्सीमेशन है, क्योंकि पाई तो इररेशनल नंबर है, 3.14 रेशनल नंबर है। तो ये सब लिनस्पेस कमांड से क्या हो रहा है कि आपको बार बार मैनुअली नहीं कंप्यूट करना पड़ा। अगर आप कमांड विंडो पे देखो तो पहले वो 100 पॉइंट उसने क्रिएट कर रखे हैं। देखो ये क्या है कमांड विंडो पे, इसके पीछे लॉजिक देखो, ये 1 से लेके 14 पहले रो में है, फिर ये टोटल 101 इंक्लूडिंग 0, ये 100 पॉइंट्स क्रिएट हो गए। फिर उस पे y के 100 वैल्यूज आएंगे, हर एक x पे ये y निकाला 100, देखो ये x तक x के ये 100 वैल्यूज हो गए, उस पे y के वैल्यू, फिर दोनों के बीच में हमने प्लॉटिंग का कमांड दिया। तो प्लॉटिंग की मैं अलग से क्लास लूंगा, मैं ये बताता कि डिस्क्रिटाइजेशन करना क्यों जरूरी है। और मैटलैब सॉफ्टवेयर, इसकी भी अपनी मशीन की लिमिट होती है। जैसे अगर मान लो मैं बहुत बड़ा नंबर दे दूं ना तो ये रन नहीं करेगा, ठीक है। कोई डाउट है आप लोगों को? आप स्नैपशॉट ग्रुप में डाल दें। थोड़ा सा मैंने एक्चुअली ये होता है ना, जैसे स्टार्टिंग के जो क्लासेस होते हैं उसमें एक बेसिक आइडिया दिया जाता है कि हमें करना क्या है, सब्जेक्ट में है क्या, और कहाँ कहाँ वो की पॉइंट्स जो कि और सब्जेक्ट से अलग करता है। तो एक तो मैंने बताया कि आप जब इम्प्लीमेंटेशन करते हो तो चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, आप काउंटिंग करो या आप मशीन्स को यूज करो, हम सिर्फ फाइनाइट क्वांटिटीज से डील कर सकते हैं।
ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट। तो जैसे जैसे आप डिस्क्रिटाइजेशन n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे आप तो ऑलमोस्ट क्लोज, देखा ग्राफ स्मूथर हो जा रहा था, पहले जिगजैग था, लेकिन जैसे जैसे हम डिस्क्रिटाइज, जब 100 पॉइंट्स में डिवाइड करके हम पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो ग्राफ क्या हो जा रहा है, स्मूथर हो गया। एक तो ये चीज। दूसरा हमने क्या नोटिस किया कि राइट साइड में जो भी होगा वो लेफ्ट साइड को असाइन होगा, दो आपको इंपॉर्टेंट की पॉइंट बताया। और तीसरा लिन स्पेस और उसका कोलोन का डिफरेंस। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, आप लोग मैटलैब इंस्टॉल करके नेक्स्ट क्लास में रेडी रहेंगे। और पहले एक्सरसाइज और ये जो आज पॉइंट्स पढ़ाया है इनको एक बार बुक से रीड करके खुद से रन करा के देखेंगे। आप स्टार्टिंग के 4-5 लेक्चर सही से कर लो, इसके बाद आपको खुद सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। ये बुक राइटर से कौन है नाम? ये एमोस गिलेट की बुक है। एक मिनट मैं शेयर कर दूंगा अभी, है ना, वाइले पब्लिकेशन के मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ओके सर। ओके थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ सर। हाँ स्नैपशॉट भेज देंगे अटेंडेंस।